ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے، اس ملک کا نام پاکستان ہے، اور پاکستان کا مطلب ہے پاک جگہ۔ یہ ہمارا ملک پاک ہے، اور آج کل والی حکومت ایک دوسرے کو سے زیادہ ملک کو پاک کرنا چاہ رہی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ میں پاکستان جو پاک ہے میں اس کو پاک اور صاف رکھ سکتا ہوں۔ یہ موجودہ حکومت جو ہے، اور جو دوسری حکومت ہے کہتی نہیں نہیں، آپ نہیں ملک پاکستان کو پاک اور صاف رکھ سکتے، ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ سے بڑھ کر اس ملک کو ہم پاک اور صاف رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دونوں کیا کر رہے ہیں؟ میں بڑھ سکتا ہوں، میں بڑھ سکتا ہوں۔ اسی بڑھنے کے چکر کے اندر جو اس ملک کے اندر غریب لوگ ہیں، ان کے گلے کے اندر چکی کا پاٹ پڑ گیا، غربت کا، وہ پھنس گئے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ شرمندگی اور رسوائی کے سوا کسی کو کچھ نہیں مل رہا۔ چاہتے تو ہیں کہ ہمارا ملک پاک رہے، صاف رہے، اور پھر بڑھنا بھی چاہتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب جو ملک پاکستان کے اندر مسیح ہیں، اپنے ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاللیلویہ۔ اپنے ملک کے لیے تعلیم چاہیے، وہ ہمارا ملک پاک ہے، صاف ہے۔ ہم اسے پاک اور صاف رکھنے کے لیے ہم ضرور ہیں کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم لوکا کی انجیل اور اس کا 18 باب نو سے لے کر 14 تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، غور کیجیے گا۔ بڑی بید کی باتیں ہیں کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اور کیسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ وہ شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا معصوم لینے والا۔ فریسی کھڑے ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار اور معصوم لینے والوں کے مانند نہیں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہیگی دیتا۔ چلیے ایک راست باز شخص کا خداوند کے آگے دعا کرنے کا سٹائل، آگے بڑھنے کا۔ اور جب وہ خدا کے گھر میں آیا تو پھر کھڑے ہو کر اس نے دعا کی۔ سنیے گا دعا میں خدا سے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ کس سے؟ جو دوسرا شخص ہیکل میں آئے اس سے میں بڑا ہوں، اور خدا کو وہ بتانا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو خدا پر اپنے کاموں سے ظاہر کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا، فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ خداوند ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہمیں دعا کرنی سکھا۔ ہمیں دعا سیکھنی چاہیے کہ ہمیں کیسے دعا کرنی ہے۔ یہ فریسی سے ہی سیکھے کہ یہ دعا تو کر رہا ہے
لیکن کیسی دعا کر رہا ہے, کیسی دعا کر رہا ہے, شکوہ دعا. کہنے لگا کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں. اچھی بات ہے, اچھا سٹارٹ لیا. اس نے دعا میں کہا کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. شروع تو نے چنگا کیتا کہ میں شکر کرنا, لیکن کیا کیا, اپنے آپ کو فوراً بڑا بنا دیا. کیا لگا میں تیرا شکر کرنا ہوں کہ میں باقی لوگوں میں مرادہ نہیں ہوں. سارے لوگ رد کر دیتے. آج کلیسیوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم باقی کو رد کر دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں. یہاں دیکھیں چرچ میں, ہیکل میں کھڑے ہو کر خدا کی موجودگی کے اندر, خدا کی حضوری کے اندر یہ بات پروف کر رہا ہے کہ میں بڑا ہوں, میں بڑا. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار اور محصول لینے والوں کی مانند نہیں ہوں. پہلی بات کہنے لگا میں ظالم نہیں ہوں. دوسری, بے انصاف بھی نہیں ہوں میں, زناکار بھی نہیں, اور پھر میں محصول بھی نہیں لیتا. میں لوگوں کے پیسے اینٹتا نہیں, لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا, میں لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, میں بدکار نہیں ہوں. جو کہ بالکل ٹھیک اس نے بتایا. زندگی اسی ایسی ہی تھی. وہ ظالم بھی نہیں تھا, وہ زناکار بھی نہیں تھا, وہ محصول بھی نہیں لیتا تھا. یہ جو خدا سے باتیں کر رہا تھا وہ بالکل درست تھی. اس کے اندر ذرا بھی جھوٹ نہیں تھا, بلکہ اور اس سے بڑھ کر بھی اس نے خداوند سے کہا. کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. آج بھی فقیہ اور فریسی ہفتے میں 2 بار آج بھی روزہ رکھتے ہیں. وہ آج بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ ان راست بازوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتے, بے انصاف نہیں, زناکار نہیں, محصول لینے والے نہیں, بلکہ دعویٰ دار کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہیے کی دیتا. جو کچھ اس میں لکھا ہے آپ کو میں بتانے لگا ہوں, یہ بالکل سچ ہے. خدا یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں. یہ سچائی ہے کلام کی کہ یہ شخص جو ہے بالکل ایسا ہی ہے. اس کی تصویر بھی ایسی ہے. آج بھی یہ تصویر موجود ہے. فقیہ اور فریسی ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے ہیں, اپنی پوری دہیقی دیتے ہیں. کہتے ہیں ساری آمدنی جتنی ہے میں دیتا ہوں. اور یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر ایک چیز سما گئی, گھمنڈ اور غرور. اس نے واضح کر دیا, اس نے اس شخص کو بھی بتا دیا, اس نے خدا کو بھی بتا دیا, اس نے دنیا کو بھی بتا دیا کہ میرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں خدا کے لیے کیا کرتا ہوں, میں لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں تو روزے بھی رکھتا ہوں. خدا آج بھی سن رہا ہے. اگر آپ میں سے, کلیسیا میں سے, پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اس جیسا ہے
तो फिर खुदावन आज उससे भी बात करने वाला है। हालेलुया। खुदावन उससे भी बात करने वाला है। ये शख्स ने दुआ की और एक शख्स की दुआ भी सुनिए। कलाम में लिखा है कि लेकिन मजदूर लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा। खुदावन सब ध्यान है। खुदावन देख, ये मजदूर लेने वाला, जिनाकार, जालिम, बेइंसाफ, रोजे नहीं रखता, दया यकीन नहीं देता, तेरे कार नहीं आता, बल्कि दूर ही खलोता है। वो दूर है। खुदा तुझे नहीं पता चल रहा, ये दूर है, इसकी राहें तुझसे दूर है। खुदा को ये समझाने की कोशिश कर रहा है। खुदा की आवाज जो धीमी है, कभी कभी जो बहुत रास पास है, वो समझते बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बहुत गिर चुके होते हैं। यहाँ कलाम साबित कर रहा है, प्रूफ करने की। सुनिएगा, गौर करिए और देखें, जो गुनाहगार है उसकी दुआ करने का स्टाइल देखो। कहने लगा कि उसके बारे में बता रहा है कि लेकिन मंजूर लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठाए। मैं देखा चुप के दुआ कर रहा, हाथ चुप के दुआ कर रहा, मैं लहराते हुए करता हूँ, मैं झूमते हुए, मैं आंसुओं के साथ तेरी प्रस्तुति करता हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ। लेकिन ये नहीं करता, इसको तो आती नहीं है। कहने लगा और उसने क्या किया, बल्कि छाती पीट कर कहा, ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हालेलुया। बड़ा कौन बन गया? जिसने रहम मांगा और कहा मैं गुनाहगार हूं, मुझे मुआफ कर दे। हमारी सारी रास्तबाजी उन पुरानी तरजीहों के माने हो गई। अगर हम इकरार नहीं करते और अगर हम तौबा नहीं करते, अगर हम तौबा नहीं करते, कोई तौबा करके गल नहीं लगा पापी दे बेटे ने एक गल खुदा दे बेटे दी जड़ा अन्यां नूं अखियां देंदा है। हालेलुया। ये ओदी गल है। तौबा उससे बढ़ गई, इकरार उससे बढ़ गया। इकरार ये तौबा दया से बढ़ गई। मैं कहता हूं 2 रोजे रखने से ये बढ़ गया। जो खुदावन के हुजूर इकरार, कई लोग कर लांगे, इकरार कर लांगे, अजय की है अजय मैं अपने बच्चे ब्याने में मैं इकरार कर लांगा, मैं तौबा कर लूंगा, अभी मैंने बहुत से काम करने हैं, मैं रिटायरमेंट हो जाएगी मेरी, फिर तो मैं खुदा का काम करना है, फिर मैं तौबा कर लूंगा, फिर मैं बपतिस्मा ले लूंगा। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में आज भी फंसे हुए हैं। लेकिन ये शख्स हम देखते हैं कि उसने क्या किया। आज बहुत ही जरूरत है कि इसने क्या किया, उस रात बाद से बढ़कर किया, उस रात बाद से बढ़कर कर दिया। और कलाम में जब हम देखते हैं ऊपर कहेगा, फिर उसने बहुत लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, तमसील करें उनके लिए जो बाकी लोगों नाचीज जानते थे कि वो 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मजदूर लेने वाला। खुदा ने कहा कि तेरी रासबाजी ना लो, यदि रासबाजी बढ़ गई है। आज हम तो जरूर इस बात पर गौर करना चाहिए कि मैं अगर रासबाज हूँ तो मैं कैसा हूँ, मेरी रासबाजी कैसी है। क्या मैं कहता हूँ कि दया की दे दी जाए, जुल्म करना बंद कर देता हूँ,
सब कुछ आस पास की तरह मैं कर रहा हूँ, लेकिन इकरार नहीं करता, तौबा नहीं करता, तो फिर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगा, दाखिला बंद हो जाता है। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम एक और हवाला पढ़ेंगे और गौर करेंगे। एक पैतनिया में जब यीशु पर अतर डाला जाता है और यमुना और उसके 12 बाब और उसकी 13 आयत से मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूंगा, सुनिएगा, गौर कीजिए। फिर मरियम ने चट्टामासी का आधा सेर खालिस और बेश कीमत अतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने पांव बालों से उसके पांव पोंछे और घर अतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, मगर इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उसकी थैली रहती थी, इसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा उसे ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। कलाम मुक़द्दस के अंदर मत्ती की इंजील, लूका के अंदर भी, मरकस में भी इसका जिक्र है, यूहन्ना की इंजील के अंदर भी इसका जिक्र है कि ये शख्स शमौन कोड़ी ने खुदा यीशु मसीह को अपने घर के अंदर दावत दी कि उसने शिफा में ली थी। उसने खुदा यीशु मसीह को भी अपने घर में बुलाया। उसने लाजर को भी, जो खुदा यीशु मसीह का दोस्त था, उसको भी अपने घर बुलाया, इसलिए कि खुदा ने उसकी ज़िंदगी में भी मौजा किया था, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा हुआ था। उसने और बहुत सारे लोगों को दावत दी अपने घर के अंदर और यीशु को भी बुलाया। गौर करने वाली बात दिल सुनिएगा, खुदा यीशु मसीह भी आया, दोस्त भी आए और मरियम भी वहां पर मौजूद थी। जब दावत खाना सब कुछ हो रहा था, तो इसी दौरान क्या हुआ कि वहां पर मरियम ने मौका भा लिया और क्या किया कि उसने झट से भाग कर आई और क्या कि खुदा यीशु मसीह के आकर कदमों के पास बैठ गई और उसके हाथ में अतर काम था। यह तो वो था जिसकी कीमत कलाम में लिखा कि 300 दिनार थी, आधा से। जवान लड़कियां जब वो उनकी शादी होनी होती है तो उससे पहले ये अतर को जमा करती हैं। ये बहुत बेशकीमती होता है। 300 दिनार की बात को आजकल जो 3-4 लाख से कम इसकी कीमत नहीं है, वो इतना महंगा है। और वो जमा करती हैं और जमा करके उस अतर को बेचकर उनकी शादी की जाती है और उनका जहेज बनाया जाता है। ये मरियम के पास ये इसकी जमा पूंजी थी, लेकिन उसने दिल के अंदर ये सोच रखा था कि आज यीशु को मैं जाने नहीं दूंगी। इस दावत के अंदर गो मुझे नहीं भी बुलाया गया और चुपके से दौड़ कर आकर यीशु पे कदमों पर बैठ गई। और कलाम में लिखा है क्या करने लगी कि उसने वो बोतल तोड़ी और तोड़ कर खुदा यीशु मसीह के पाँव पर बोतल डाल दी और फिर उसके कदमों में बैठ कर अपने बालों से उसके पाँव पोंछने लगी, आंसू के साथ पोंछने लगी। वहाँ जितने मेहमान आए थे उन्होंने एक जवान कुड़ी और यीशु भी जवान, और इसको ख्याल नहीं इस बात का कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि शायद यीशु को इस बात की खबर नहीं कि ये औरत तो गुनाहगार है, कसबी है। गौर करें कि क्या हुआ।
खुदा में यीशु मसीह जो प्रेतों के जानने वाला है, उसने क्या किया? उन्होंने कहा शमौन, मैं जब से तेरे घर में आया तूने तो मेरे पाँव धोने के लिए पानी तक ना दिया, और जब से मैं आया हूँ ये अपने आंसुओं से देख, अपने बालों से मेरे पाँव को पहुँच रही है। और खुदा यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि मरियम जा, तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। शमौन से वो बढ़ गई। आज जरूरत है कि हमें भी बढ़कर करना है। हमें अपने चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बढ़कर खिदमत गुजारी का काम करना है। जब हम बढ़ेंगे तो तब हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे। जब हम बढ़कर, बहुत जरूरत है कि हम अपने कलीसिया के अंदर, अपने चर्च के अंदर, अगर चर्च का टाइम 9:30 बजे है तो अगर आप 10 बजे आओ तो घट गए या बढ़ गए? घट गए। अगर आप 9 बजे आए तो फिर बढ़ गए, क्योंकि टाइम तो 9:30 का है। और अगर आप 9:30 आए तो फिर बराबर आ गए। तो फिर कम को नहीं, खुदा की बादशाही में वो दाखिल होंगे जो खुदा के काम बढ़कर करते हैं, बढ़कर मनाती करें, बढ़कर खुदा के घर के अंदर आए, बढ़कर आके घर की सफाई करें, बढ़कर खुदा की खिदमत गुजारी का काम करें, बढ़कर दुआ करें। अगर 10 मिनट दुआ करते ये बढ़कर नहीं है, क्योंकि 3 घंटे खुदा यीशु मसीह ने गतसमनी में दुआ की, तो अगर आप 3 घंटे भी करते तब भी बढ़कर नहीं है। फिर 3.5 घंटे दुआ करें। अगर आप 5 मिनट बाइबल पढ़ते हैं तो ये भी कम है। फिर 2.5 घंटे दुआ की है। अगर आप 2.5 घंटे दुआ करते हैं तो शायद बराबर कर देंगे, और अगर 3 घंटे करेंगे तो फिर बढ़कर है। हालेलुया। आज हम उस अहद के अंदर चले। आज हमें क्या करना है? खुदा में यीशु मसीह का जितना काम है हमने बढ़कर करने, घाटे का सौदा नहीं करना। बदल है जिमें लुबनान का शुरू बनता ओमे बनते जावांगे। हमने लुबनान के शुरू की तरह बढ़ना है। आज फैसला कर लीजिए कि हमने पहला हिस्सा जो है वो खुदा को देना है। वो कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। बहुत हम कहते हैं देना नहीं, पहले हम ये तो कर लें, फिर वो करेंगे। जो खुदा को अपना पहले वक्त, अपने पहला हर समय देते हैं, वो कभी भी याद रखिए फेल नहीं होते। और उनके लोग भी अपना पहला कहते नहीं, पहले उनको दो, पहले उसको बताओ, उनको बताया। खुदा की तरफ से उनके लिए भी ये आवाज़ बन जाती है। हालेलुया। आज मैं समझता हूँ कि हमें चंद लोगों के लिए खड़े होकर, ज़्यादा इस मैसेज का नहीं है, ज़्यादा जो दुआ है, अचानक के कदमों में खड़े हो। तो मैं हम एक गीत, खूबसूरत गीत गाएंगे। खुदा ने हमें एल्बम भी दिया, और जब बजाएगा तब तो बाजी इरम हमारे दरमियान मैं चाहूँगा एक खूबसूरत